Hello friends, today we will start to learn chapter number 2, fractions and decimals. Before we start, let's know brief about fractions. So friends, fractions मतलब हम पिछले ग्रेड में पढ़ चुके हैं. What is the fraction? So fraction is the part of whole number. कोई whole number का कुछ पार्ट दिया गया हो तो उनको फ्रैक्शन बोलते हैं. So फ्रैक्शन के टाइप्स हम देखते हैं. So let's start different types of fraction. First, start from like fraction. So what is the like fraction? So like fraction we can understand by an example. So if we have fractions like 5 by 4, 3 by 4, 7 by 4 like this. Here we can say that all fractions have same denominator. यहाँ पे सारे फ्रैक्शन है उनका डिनोमिनेटर कैसा है? सेम है. So we can say that it is the like fraction. It is also like fraction. ठीक है? So these are the like fraction. अगर सेम डिनोमिनेटर है तो उनको like fraction बोल सकते हैं. Now next one is unlike fraction. अनलाइक फ्रैक्शन. तो अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? तो लाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल से ऊपर से हम समझ सकते हैं, बोल सकते हैं. एज्यूम करो जी आप अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? लेट्स सी अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल. इफ वी हैव फ्रैक्शंस लाइक 5 by 8, 9 by 6, 3 by 11 like this. तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करते हैं कि यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर कैसे हैं? जया डिफरेंट. अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के डिफरेंट है तो उनको क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है? तो लाइक दिस इज द लाइक फ्रैक्शन, दिस इज द अनलाइक फ्रैक्शन. इन लाइक फ्रैक्शन ऑल फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर. इन अनलाइक फ्रैक्शन ऑल डिनोमिनेटर हैव all fractions have different denominator. Okay, so this is the like fraction, this is the unlike fraction. Now if we move further, then proper fraction. In proper fraction we can understand by taking one an example. If we have fractions like 1 by 5, if in fraction numerator is smaller than denominator, then it is called proper fraction. Again we take another example. If numerator of fraction is smaller than denominator, यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से लेस देन है. So we can say that it is proper fraction. Now again you can take any example whose numerator is smaller than denominator, then it is called proper fraction. Let's see move next topic, improper fraction. In improper fraction we can define by numerator is bigger than denominator. If we have fraction who have numerator is bigger than denominator, then it is called improper fraction. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे एग्जाम्पल में जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़े हैं. न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन denominator, then it is called proper fraction. If we have numerator bigger than denominator, then it is called improper fraction. तो यहाँ पे हमने चार टाइप के फ्रैक्शन देखे. लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन में क्या करना है? क्या होता है? तो कि सारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं. अनलाइक फ्रैक्शन मतलब तो कि जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उनके सारे डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? तो कि जिनका न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा, मींस न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. If fractions have numerator bigger than denominator, numerator
bigger than diameter, then it is called improper section. So these are the types of sections. Let's move further. Another one is mixed section. In mixed section, it combines whole part with section. It is called mixed section. So if we understand by an example, let me take one example. Mixed section means it is combination of whole part with section. This is the whole part, one is whole part, and this is the section. It is called mixed section. Okay? We can take another example. 5 whole by 3. By means divided by, okay? 5 whole by 3. It is called mixed section. So this is the example of mixed section. Okay? In mixed section में वो दो पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है. एक पार्ट जो ये क्या होता है सेक्शन का, और एक पार्ट होता है मिक्स्ड सेक्शन, सॉरी होल पार्ट. सो होल पार्ट एंड सेक्शन पार्ट कंबाइन करके मिक्स्ड सेक्शन बनता है. सो दिस इज द मिक्स्ड सेक्शन. नाउ लेट्स वी मूव फर्दर इन एक्सरसाइज नंबर 2.1. Okay, exercise number 2.1. Example number 1. Please keep your textbook with you so you can read the data. Question number 1. It is given that we have to solve different type of sections, addition, subtraction, and mixed sections, addition and subtraction. Okay, so let's start from question number 1. Example number 1. It is given that we have to subtract 2 minus 3 by 4. This is the data of first example. So here 2 is whole part and we have to subtract 3 by 5. That means section part. So first what we have to do, we have to put 1 in denominator of whole part. अगर हमारे पास यहाँ पे नहीं कर दिया मीन्स होल पार्ट दिया गया है, तो उनके डिनोमिनेटर में कुछ ना अगर दिया गया हो तो हम 1 पुट अप कर सकते हैं. ठीक है, सो 2 डिवाइडेड बाय 1 हम लिख सकते हैं माइनस 3 by 5 एज इट इज. बट इफ वी वांट टू सॉल्व देन वी हैव टू नो हाउ कैन वी टेक आउट एलसीएम. ठीक है, एलसीएम अगर हमको आना चाहिए ये सॉल्व करने के लिए, सो वो भी हम रिवाइज कर लेते हैं कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं. सो एलसीएम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं. अगर हमारे पास यहाँ पे सपोज एग्जाम्पल 1/2 माइनस 3/5 दिया गया है, तो हम दो तरीके से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं. जैसे क्योंकि अगर सिर्फ दो ही फिक्स्ड नंबर या दो ही नंबर दिए गए हो तो डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट करके हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि एलसीएम करके क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो 1 into 5 that is 1 5 5 minus as it is, and 3 into 2 that is 6. In denominator we have to multiply 2 with 5 that is 10. So this is the cross product LCM. Okay, now if we subtract 6 from 5 that is -1 and divided by 10, so answer is -1/10. This is the one method. Okay, this is useful only two numbers. If we have more than two numbers, then what we do, if we have more than two numbers, 1/2 plus 3/5 minus 6/1. If we want to find LCM of these three sections numbers, then what we have to do, we will do take LCM by ladder method. यहाँ पे हमको LCM ladder method से फाइंड कर सकते हैं. इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी लेंदी हो जाती है. अगर 3 नंबर इंटीजर सेक्शन हमारे पास है तो वो थोड़ी मेथड लेंदी हो जाती है. ठीक है, तो what we have to do, we have to use ladder method. We have to put all denominators in ladder form. Now we have to divide it 1 by 1. Start from 2.
यहाँ से हम 2 से स्टार्ट करेंगे सभी नंबर को डिवाइड करने के लिए। तो 2 से ये 2 डिवाइड होता है तो 1 आता है, 2 से 5 डिवाइड नहीं होता है तो 5 एज इट इज रखना है, 2 से 1 डिवाइड नहीं होता तो 1 एज इट इज रखना है। ठीक है, बाद में यहाँ पे देखना है कि कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है। तो 1 तो डिवाइड नहीं हो सकता है, तो नेक्स्ट आएगा 2 से तो डिवाइड किया, नेक्स्ट 3 से भी कोई नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, तो 5 नंबर से डिवाइड ये हो सकता है। तो 1 एज इट इज 5 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 1 एंड दैट इज 1। अगर यहाँ पे सारे नंबर 1 1 1 आ जाए तो उनका मतलब हमने लेवल मेथड से एलसीएम फाइंड कर लिया है। एलसीएम कैसे आएगा? तो यहाँ पे जो नंबर आता है उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। So 2 into 5 that is 10. So this is the LCM of our example. तो यहाँ से सब जगह हमको 10 लाना है, LCM हमारा 10 हुआ है। हम एग्जाम्पल भी देखेंगे आगे, पर ये LCM की 2 मेथड है। This is called cross LCM, okay, and this is called Wheeler method. तो ये दोनों मेथड से हम LCM फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर है तो क्रॉस प्रोडक्ट यूजफुल होती है। ठीक है, so what we have to do? We have to multiply from left side. So 2 into 5, 2 into 5 that is 10 minus as it is. Now 3 into 1 that is 3. And in denominator ये दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करना है। So 1 into 5 that is 5. So 10 minus 3 that is 7 and divided by 5. This is the answer for first example. Okay, before we start second example, let's see understand once again. यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं, एक होल नंबर है और एक है सेक्शन नंबर। तो होल नंबर में क्या करना है? अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया गया है तो हम 1 पुटअप कर सकते हैं। तो 1 पुटअप करने के बाद अगर 2 ही नंबर दिया गया है तो क्रॉस प्रोडक्ट से एलसीएम इजी रहता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। So 2 into 5 that is 10 minus as it is 3 into 1 that is 3. Now in denominator we have to multiply. So 1 into 5 that is 5. So 10 minus 3 that is 7 and 5 as it is. So this is the 7 by 5 answer. Now let me move further. Next example. Question number 1, example number 2. So in example number 2, data is given that 4 plus 7 by 8. This is the second example's data. So we can see that here we have to add whole number with section number. यहाँ पे whole number के डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं दिया गया है तो हम क्या लिख सकते हैं? आगे के एग्जाम्पल में क्या लिखा था? 1, तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया गया है तो प्लस 7 by 8 as it is. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने नंबर से सेक्शन नंबर 2 है, तो हम उनका एलसीएम क्रॉस प्रोडक्ट से इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो 4 into 8 लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है पहले। सो 4 into 8 that is 32 plus as it is 1 into 7 that is 7 and in denominator 8 into 1 डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होता है। So 8 into 1 that is 8. So 32 plus 7 कितने होते हैं? 39 and divided by 8. So this is the answer. हम इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल आएगा तो हम देखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर। एग्जांपल नंबर 3, डेटा इज गिवन है 3 by 5 plus 2 by 7। यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों नंबर सेक्शन है। सो वी हैव टू डायरेक्टली टेक एलसीएम। सो 3 into 7 लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है। सो 3 into 7 that is 21 plus 5 into 2 that is 10 and in denominator we have to multiply both denominators. So 5 into 7 that is 25. Now
21 plus 10, 21 plus 10, that is 31 divided by 35. यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इनको कौन सा फ्रैक्शन बोल सकते हैं? किस टाइप का फ्रैक्शन है ये? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर देन इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो इनको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में से कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है? सो वी कैन कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। वी विल सी अनदर एग्जांपल। लेट्स वी मूव फर्दर। थर्ड एग्जांपल इज 9 by 11 minus 15. 9 by 11 minus 4 by 15. This is the fourth one example. यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिए गए हैं हमको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। So what we have to do first? We have to multiply from left hand side. So 15 into 9. Minus 11 into 4, that is 44. And we have to multiply 15 into 11. You have to separately multiply 15 into 11. So, what will you get? 165. 165. This is the multiplication of 11 into 15. So, if we subtract 155 minus 44, so what will we get? 1 and 9, 91 divided by 165. अगर यहाँ पे दोनों नंबर कैंसिल होते हैं तो कैंसिल करना है, ठीक है? बट 91 and 165 कैंसिल नहीं होंगे। So this is the answer and you can define it is proper fraction or improper fraction. It is यहाँ पे न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर छोटा है, so we can say that it is proper fraction. Okay, so this is the proper fraction. Now let's move further. Next, question number 5. In question number 5, it is given that 3 fractions, that is 7 by 10 plus 2 by 5 plus 3 by 2. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 फ्रैक्शन दिए गए हैं, तो क्या करना है? पहले तीनों फ्रैक्शन का एलसीएम लेना होगा, ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट से यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर 2 नंबर हमारे पास है तो डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा नंबर है तो लेजर जो मेथड है एलसीएम की वही बेटर रहती है। तो वो कैसे फाइंड करना है? सो लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व बाय लेजर मेथड। यहाँ पे 3 बिंदु पर जो भी दिए गए हैं वो लिख देना है 10, सेकंड वन इज 5 एंड थर्ड वन इज 2। यहाँ पे तीनों का डिनोमिनेटर लिख दिया है। हमको स्टार्ट 2 से करना है, 2 से डिवाइड करना है, शुरू करना है, ठीक है? सो इफ वी स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2 देन 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 5 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं नहीं, तो 5 रहेंगे एंड 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। नेक्स्ट प्राइम नंबर ही लेना है, ठीक है? तो 2 के बाद 3 आएगा, पर 3 को हम इसमें से कोई भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं नहीं। सो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा 5। सो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पे भी 1 एंड 1 एज इट इज। सो सारी जगह पे 1 आ गया, तो हमारा एलसीएम फाइंड हो चुका है। व्हाट इज द एलसीएम? वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 2 into 5। सो एलसीएम इज 10। So this is the LCM of our example. LCM का मतलब क्या है कि हमको सभी जगह 10 लेके आना है, ठीक है? So 10 लेके आने के लिए यहाँ पे तो 10 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एज इट इज हमको रख देना है। प्लस की प्लस साइन, यहाँ पे 2 by 5 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में मुझे 10 लाना है,
तो 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा? तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे भी अगर सपोज डिनोमिनेटर में आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये 2/5 एज इट इज रहेंगे। ठीक है, अगर आप 2 कैंसिल कर देते हो तो 2/5 हमको वापस मिल जाना चाहिए। कुछ वो डेटा दिया गया है उसमें कुछ डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड प्लस एज इट इज यहाँ पे 3/2 दिया गया है। अगर मुझे यहाँ पे 10 लाना है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कौन किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? सो 2 5 में 10 होगा, तो यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो न्यूमरेटर में भी क्या करना होगा? 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, सो अभी सभी जगह 10 हो गए, हम देखते हैं 7/10 प्लस 2 into 2 that is 4 and denominator में 5 into 2 that is 10, 3 into 5 that is 15 and 2 into 5 that is 10। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं all are same denominator। ओके, सो सेम डिनोमिनेटर जिनका होता है उनको कैसे फ्रैक्शन बोलते हैं? which type of this fraction we converting in like fraction। ओके, converting into like fraction। अगर हमारे पास 2 से ज्यादा फ्रैक्शन है तो पहले क्या करना होगा? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, और लाइक फ्रैक्शन के बाद एग्जांपल बहुत इजी हो जाता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत इजी हो जाता है। कैसे हम देख सकते हैं? लाइक फ्रैक्शन में जो भी डिनोमिनेटर होता है उनको सिर्फ एक बार यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे सारा डिनोमिनेटर 10 है तो हमको सिर्फ एक बार 10 लिख देना है। जो भी न्यूमरेटर हो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी दिया गया है वो हमको करना है। सो हियर वी हैव टू एड 7 प्लस 4 प्लस 15। न्यूमरेटर का एडिशन कर देना है, डिनोमिनेटर सारी जगह पे सेम हो गए हैं तो उनको एक बार यहाँ पे लिख देना है। सो 7 प्लस 4 प्लस 15 कितने होते हैं? 7 प्लस 4 दैट इज 11, 11 प्लस 15 21 प्लस 4 21 plus 4 that is 26। so 26 divided by 10। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 26 divided by 10 है तो इनको कैंसिल कर सकते हैं। कैसे? तो कि ये 26 है, 26 का पार्ट क्या होता है? फैक्टर क्या होता है? तो 13 into 2, 13 2 जा 26 एंड 10 का फैक्टर क्या होता है? 5 into 2, 5 2 जा 10। तो हम यहाँ पे 2 कैंसिल कर सकते हैं और बाद में क्या बचेगा? सो 13/5। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर कैंसिल होते हुए तो हमको करना है, ठीक है, फैक्टर करके। सो 13/5 दिस इज द फाइनल आंसर। फ्रेंड्स, विच टाइप ऑफ दिस फ्रैक्शन? ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन मींस न्यूमरेटर कम होता है डिनोमिनेटर से, यहाँ पे न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, so this is called improper fraction। okay, so this is the answer for example number 5। now let's move further। okay, see the example of 6, that of example number 6। that is given that mixed fraction addition it is given here 2 whole 2/3 2 whole 2/3 plus 3 whole 1/2। this is the data of 6 example। okay, so let's start। हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो पहले हमको उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। प्लीज लिसन केयरफुली। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व करना है, समेशन या एडिशन करना है, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, बाद में हम सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो पहले हम जान लेते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो ये जो होल नंबर है और डिनोमिनेटर है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। सो 2 into 3 that is 2 into 6 that is 6
एंड जो न्यूमरेटर में होता है उनके साथ उनका एडिशन होता है, जैसे 6 + 2, तो 6 + 2 आंसर क्या आएगा 8। एंड डिनोमिनेटर में जो भी दिया गया है वो एज इट इज हमको रखना है। वापिस यहाँ पे जो दो नंबर होता है होल नंबर एंड डिनोमिनेटर उनका मल्टीप्लिकेशन, जैसे 3 × 2 = 6, एंड यहाँ पे जो दिया गया है न्यूमरेटर में उनको ऐड करना है, 6 + 2 that is 8, so 8 divided by 6, so 8 divided by 3 is the improper fraction of mixed fraction। प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, so 3 × 2 = 6 and 6 + 1 that is 7, and डिनोमिनेटर में तो जो डिनोमिनेटर है वो ही रखना है, so these are the improper fraction from mixed fraction। mixed fraction में होल नंबर होता है और फ्रैक्शन पार्ट होता है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, उनको हम सोल्व करके इम्प्रोपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर ये देख सकते हैं कि वापिस ये जो एग्जांपल हमने सोल्व किए थे वो फ्रैक्शन वाले, ये अगर दो फ्रैक्शन हमारे पास है तो क्रॉस प्रोडक्ट से सोल्व कर सकते हैं। तो सिमिलरली वी कैन डू फॉर इट 8 × 11 से स्टार्ट करना है, 8 × 16 प्लस 7 × 3 that is 21 डिवाइडेड बाय ये दोनों डिनोमिनेटर का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, so 3 × 6, इनका एडिशन करेंगे तो 7 37 and 6। एंड यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है तो जो फाइनल आंसर रहेगा उनका भी हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, लेकिन कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो फ्रेंड 37 को 6 से डिवाइड करके कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम वो देखेंगे चलो कि पहले हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, लेट्स सी। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फाइनल आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया, इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, क्योंकि हमको 37 को 6 से डिवाइड करना है, 37 को 6 से डिवाइड करना है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 × 36, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, रिमेनिंग 1 होगा, ठीक है। तो फिर ध्यान से देखना, जो क्वोशंट होता है वो होल पार्ट होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वोशंट होता है वो होल पार्ट होता है, और जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है। तो इसको कैसा लिखते हैं, ये डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देना है, डिनोमिनेटर में तो जो भी हो वो रिमाइंडर लिख देना है। यहाँ पे होल पार्ट आता है तो होल पार्ट क्या होगा, तो होल पार्ट होता है वो क्वोशंट होता है, तो क्वोशंट 6 आया तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। जो रिमाइंडर होता है उनको कहाँ पे लिखना है, न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 लिख दिया। वापिस वेरीफाई कर लेते हैं कि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाते तो ये आंसर आता है कि नहीं, तो लेट्स क्रॉस वेरीफाई 6 × 6 ये होल पार्ट एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 × 36 एंड न्यूमरेटर जो भी आता है उनको ऐड करना है, तो 36 + 1 that is 37 and denominator is it is okay। So this is the mixed fraction for improper fraction। Now let's move further। Example number 7 is given that subtraction of mixed fraction, okay, that is 8 whole 1/2 minus 3 whole 5/8। फ्रेंड्स यहाँ पे एक दूसरी मैं चीज बताता हूँ, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है उनको दो तरीके से आप बोल सकते हैं। वन, यू कैन कॉल इट लाइक 8 होल पार्ट है तो 8 होल 1/2 3 होल 5/8, ये एक मेथड हुई। दूसरी मेथड से आप कैसे बोल सकते हैं 8 and 1/2 3 and 5/8, ये दूसरी तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप बोल सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले किसमें कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इन इम्प्रॉपर फॉर्म। तो इम्प्रॉपर फॉर्म में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो होल पार्ट एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 × 2 = 16 and 16 + 1 that is 17, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस 8 × 3 = 24, 24 + 5 that is 29 and divided by 8। So these are the improper fraction।
Now what we have to do? We have to multiply 17 into 8. So 78 is 136 minus sign है तो minus sign 29 into 2 29 2 क्या होता है 58 and divided by 8 into 2 that is 16 18 to the 16 136 में से हमको 58 सब्ट्रैक्ट करना है तो वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 136 minus 58 आप करो अपने बुक में कैलकुलेट करो so you will get the answer 16 minus 8 that is 8 12 minus 5 that is 78 you will get answer 78 divided by 16 now you can see here you will what will you do you can इनको कैंसिल कर सकते यू कैन कैंसिल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो इनका फैक्टर करके तो पहले क्या करेंगे 36 2 जा सॉरी 39 into 2 that is 78 and 8 into 2 that is 16 so 2 cancel so answer is 39 by 8 हम अभी इनको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि 39 का फैक्टर 33 होता है जितना 4 2 होता है तो वो कैंसिल नहीं हो सकते हैं नाउ व्हाट विल वी डू फ्रैक्शन नंबर दिए गए हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो आया है उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए गए हैं उनको पहले हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया वापस उनको किस में कन्वर्ट करना है यहाँ पे भी किस में कन्वर्ट किया था मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम उनको डिवाइड करते हैं ठीक है सो यहाँ पे 39 उनको 8 से डिवाइड करते हैं तो चलो देखते हैं कितना होता है 8 5 का 40 हो जाता है तो 8 4 जा इट इज 32 यहाँ पे कितना आएगा 7 3 minus 3 that is 0 now we can see that here क्वेश्चन पार्ट इज और क्वेश्चन पार्ट होता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्या पार्ट हो जाता है वो होल नंबर हो जाता है ठीक है वो होल नंबर हो जाता है एंड जो ये रिमाइंडर होता है वो क्या बन जाता है दिस इज न्यूमरेटर ओके सो लेट्स मेक इट इन मिक्स्ड फॉर्म तो होल पार्ट क्या आएगा 4 डिनोमिनेटर में तो जो भी है वो एज इट इज लिख देना है और न्यूमरेटर में क्या आएगा दैट इज 7 हम देख सकते हैं कि 8 4 जा 32 एंड 32 प्लस 7 दैट इज 39 तो 39 by 8 आ गया तो ये हमने वेरीफाई कर लिया नाउ लेट्स मूव एग्जांपल नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 question number 2 read the data of question number 2 what you have to do in question number 2 okay exercise number 2.1 question number 2 in question number 2 it is given that arrange the following descending order ओके क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि जो नीचे का फ्रैक्शन दिया गया है दैट इज 2/9 नेक्स्ट वन इज 2/3 नेक्स्ट वन इज 8/21 ये जो नंबर दिए गए हैं उनको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है चलिए सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रेंड्स अगर फ्रैक्शन नंबर नहीं है तो हम डायरेक्टली इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं पर ये फ्रैक्शन नंबर है तो फ्रैक्शन नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे ऑर्डर करना है अरेंज कैसे करना है उनके लिए पहले हमको कोई भी फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो लाइक फ्रैक्शन क्या था लाइक फ्रैक्शन में सभी फ्रैक्शन नंबर का डिनोमिनेटर क्या था सेम था तो जितने भी फ्रैक्शन होते हैं उनका डिनोमिनेटर पहले हमको सेम करना होता है और डिनोमिनेटर कैसे सेम करते हैं हमने एलसीएम की दो मेथड जानी थी फर्स्ट वन इज क्रॉस प्रोडक्ट एंड सेकंड वन इज लेडर मेथड तो लेडर मेथड से एलसीएम लेते हैं ठीक है सो
यहाँ पे 2/9, 2/3 एंड 8/21 इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। तो वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू लाइक फ्रैक्शन। सो पहले हमको एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा लाइक फ्रैक्शन में अरेंज करने के लिए। सबका डिनोमिनेटर है 9, 3, 21। हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं 2 से, पर 2 से देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी नंबर डिवाइड होता है नहीं। तो नेक्स्ट नंबर आएगा 3, तो 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 and 3 7 जा 21। Again we have to divide it by 3, so 3 1 1 negative and 7 negative। Now again we have to divide it by 7। 3 के बाद नंबर 5 आ जाता है, 5 से कोई होता नहीं है यहाँ पे सब डिवाइडेड। सो नेक्स्ट 7 आएगा, तो 1 1 and 7 1 जा 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों 1 आ गए। सो वी फाइंड आवर एलसीएम। सो व्हाट इज द एलसीएम? दैट इज 3 into 3 into 7। सो 3 is 9 and 9 7 जा 63। So this is the LCM of our example. So we have to convert all the denominators into 63। So यहाँ पे 2 divided by 9 है, यहाँ पे मुझे 63 लाना है। So what we have to do? We have to multiply 9 with 7। So 9 7 जा 63। तो यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे भी 2 divided by 3 दिया गया है, तो 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा। हमको पता नहीं है तो क्या करना होता है कि जो एलसीएम होता है उनको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे तो वो नंबर मिल जाएगा। कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मुझे 63 मिलेगा। सो यहाँ पे 3 2 जा 6 0, 3 3 1 जा 3 0, यहाँ पे 0 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वोशंट होता है उनको हमसे मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर से, तो डिनोमिनेटर लाना होता है वो मिल जाएगा। सो 321 जा 63 होता है। तो यहाँ से भी हमको यहाँ ऊपर भी हमको 21 से मल्टीप्लाई करना होगा। एंड यहाँ पे तो 8 डिवाइडेड बाय 21 दिया गया है। फिर अगर वापस हमको 63 जाना है, पर यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 into 21 63 होता है। तो 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा, ऑब्वियसली 3। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो सारे डिनोमिनेटर को 63 बनाना है तो हमको एलसीएम लेना होगा और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 जा दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 9 7 जा 63, 21 2 जा 42 एंड 21 3 जा 63, 8 3 जा 24 एंड 21 3 जा 63। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट हो गए 63 में, दैट इज लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम इजीली कह सकते हैं कि कौन सा नंबर बिगर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है, और उस हिसाब से हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए उनका अभी न्यूमरेटर इफेक्ट देखना है कि जिनका न्यूमरेटर छोटा है वो स्मॉलर नंबर है और जिनका न्यूमरेटर बड़ा है वो बिगर नंबर है। So here 42 is bigger, so this is the bigger number from all three fraction numbers, okay, and 14 is smaller, so 14 by 16 it is smaller fraction number from all three numbers. We have to arrange in descending order. Descending order में arrange करना है तो क्या होगा, तो पहले हमको bigger number लिखना है, that is 42। अभी हमको डिनोमिनेटर नहीं देखना है, सिर्फ न्यूमरेटर देख के ही नंबर को बिगर या स्मॉलर डिफाइन करना है। तो 42 is bigger, so 42 divided by 63 is bigger than next number is 24 divided by 63 and next number is 14 divided by 63. So we arrange in descending order. Now again we have to convert it in original form. Original form 42 by 63 है, वो कौन सा फ्रैक्शन नंबर में से आया था? So we can say that here it is 2 by 3 फ्रैक्शन नंबर में से आया था। So 2 by 3 यहाँ पे लिख सकते हैं। Next 24 by 63 वो कौन से नंबर में आया था? 24 by 63 it is come from 8 divided by 21. So we can write here 8 divided by 21 and last one is
2 divided by 9. So we add all these fractions number into descending order. Let's see, understand again. यहाँ पे 3 फ्रैक्शन नंबर दिए गए हैं. We have to arrange in descending order. पर फ्रैक्शन नंबर को डायरेक्टली हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं कर सकते. फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शन. सो लाइक फ्रैक्शन में सभी डिनोमिनेटर सेम करना होता है. तो उनके लिए पहले क्या करना होगा, हमको एलसीएम फाइंड करना होगा. डिनोमिनेटर में से एलसीएम फाइंड करना होगा. सो एलसीएम इज 63 LCM आया. So we have to convert all denominators into 63. Okay. So here 63 सभी fractions में denominator आ गया. So now we have to check only numerator which one is bigger. So 42 is bigger. So ये number ये fraction part सबसे बड़ा होगा and 14 is very smaller from all these 3 fraction numbers. So 14 by 16 is smaller fraction number. Okay. So this is the answer in descending order. Second example, you can calculate by yourself like this. So let's move for the question number 3. Please get the data of question number 3. There is given one square box 3 by 3 square box. We have to check is it magic square or not. Then what is magic square? Do you remember chapter number 1? We learned 2 magic square. इन चैप्टर नंबर 1 में मैजिक स्क्वायर क्या होता है वो हमने देखा था. इन मैजिक स्क्वायर वी हैव टू फाइंड एडिशन ऑफ ऑल कॉलम ऑफ रो एंड और डायगोनल. इफ ऑल आंसर आर सेम देन वी कैन से दैट इट इज मैजिक स्क्वायर. मैजिक स्क्वायर में सभी कॉलम्स के सभी रोज के एंड दोनों डायगोनल के आंसर अगर सेम आते हैं, एडिशन सेम आते हैं, तो उनको हम मैजिक स्क्वायर बोलते हैं. So we have to check it, is it magic square or not. So let me try to find out. यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स 3 by 3 का स्क्वायर बॉक्स दिया गया है. डेटा इनकम है 4 by 11, 4 by 11, 3 by 11, 8 by 11. Next one is 9 by 11, 5 by 11. And 1 by 11. Next one is 2 by 11, 7 by 11, and 6 by 11. So data are here. Friends, denominator को आप इसे स्लेट करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. So 9 by 11, इनको 9 divided by 11 बोलते हैं. So we have to find addition of all rows, addition of all columns, and addition of both diagonals. If all additions are same, then we can say that it is magic square. So let's start from first row. First row addition. So it is first row here means 4 by 11 plus 9 by 11 plus 2 by 11. We have to add all these fractions. So then यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी के डिनोमिनेटर सेम है. तो अभी ये लाइक फ्रैक्शन में है. सो वी डोंट रिक्वायर टू कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन. अगर लाइक फ्रैक्शन में है तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं दैट इज 11 एंड वी हैव टू ऐड ऑल 3 डिनोमिनेटर दैट इज 4 plus 9 plus 2. So what is the answer? So that is 9 plus 2, 11 plus 4, that is 15 and divided by 11. So this is the addition of first row. Similarly, you can find addition of second row. Second row का addition करना होगा तो कौन से वैल्यूज लाएंगे? 3 by 11 plus 5 by 11 plus 7 by 11. We have to add these 3 numbers. Okay. So here like section है तो directly we can put 11 and 3 plus 5 that is 8. Sorry 3 plus 5 plus 7. We have to add all the numerators. So 3 plus 5 that is 8 and 8 plus 7 that is 15 divided by 11. Hence you have to find first, second, third row addition, first column, second column, third column addition, first diagonal addition, second diagonal addition. You will find
same answer for all these. Okay, so we can say that it is very clear. अगर आप जैसे फर्स्ट रो का एडिशन फाइंड किया है, सेकंड रो का एडिशन फाइंड किया है, वैसे ही आपको थर्ड रो का एडिशन फाइंड करना है। बाद में फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम का एडिशन फाइंड करना है। लेफ्ट डायगोनल का एडिशन फाइंड करना है, दैट इज 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, इनका एडिशन फाइंड करना है। राइट डायगोनल का एडिशन 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11, so 3 कॉलम्स का एडिशन, 3 रोज का एडिशन, 3 कॉलम्स का एडिशन एंड दोनों डायगोनल का एडिशन, उनका आंसर सेम ही आएगा। फिर दैट इज 15/11 में आएगा। यू कैन वेरीफाई इट एंड यू हैव टू कैलकुलेट इट। ओके, सो you can say that all answers are same, and we can say that it is a magic square. Okay, let's move on to example number 4. Question number 4. Please read the data. Question number 4. In question number 4, data is given that a rectangular sheet of paper, is stretched where a 1/10 centimeter long and 2/3 centimeter wide. Find each perimeter. Okay, यहाँ पे एक rectangle sheet दी गई है, उनकी width क्या दी गई है, length क्या दी गई है, 12 and 1/2 centimeter और 12 और 1/2 centimeter, and उनकी width दी गई है 10 and 2/3 centimeter. What we have to find? We have to find perimeter of this rectangle sheet. So this is the question number 4, exercise number 2.1, question number 4. आप डेटा में देख सकते हैं, एक पेपर की शेप दी गई हुई है, उनका शेप रेक्टेंगल फॉर्म में है, उनकी लेंथ 12 and 1/2 centimeter है and width है 10 and 2/3 centimeter. What we have to find? We have to find perimeter of this shape. Okay, so for that we have to know the formula of rectangle, of perimeter of rectangle. Okay, so here length of rectangle shape, that is 12 and 1/2 centimeter. Width of rectangle shape, that is 10 and 1/2 centimeter. Now formula of perimeter of the rectangle shape. Rectangle shape, that is 2 into, किसी को पता है फॉर्मूला क्या है? आप सोचो कि फॉर्मूला क्या है? So formula is 2 into bracket length plus breadth. Length plus breadth. Okay, और width भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है? So 2 लेंथ क्या दी गई है? 12 and 1/2 centimeter plus width और breadth क्या दी गई है? 10 and 1/2 centimeter. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों मिक्स्ड सेक्शन में है। तो मिक्स्ड सेक्शन में से पहले हमको किसमें कन्वर्ट करना होंगे? मिक्स्ड सेक्शन में से पहले हमको इनको इम्प्रोपर सेक्शन में कन्वर्ट करना होगा। सो 2 इनको इम्प्रोपर सेक्शन में से कैसे कन्वर्ट करते हैं? 12 2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है। सो 12 2 24 and 24 plus 1, that is 25 divided by 2 plus इनको कन्वर्ट करते हैं इम्प्रोपर सेक्शन में 10 2 20 and plus 1, that is 21 divided by 2. Now you can see here these are two right sections. Okay, so we can add directly right section का अगर है तो डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? डिनोमिनेटर जो भी है उनको एज इट इज लिखना है और न्यूमरेटर का एडिशन, दैट इज 25 plus 21. So what will be the answer? So 2 as it is 25 plus 21 कितना होता है? So 46 and into 2. फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो सकता है?
कैंसिल हो सकता है, अगर सेम है तो कैंसिल हो सकता है। सो यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो दोनों कैंसिल हो गए। सो आंसर इज 46 एंड व्हाट इज यूनिट? इट इज सेंटीमीटर। सो 46 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल शेप। ओके, so that's all question number 4. Now let's move further, question number 5. Please read the data of question number 5. In question number 5, there are 2 steps. One is in triangle form, second one is in rectangle form. Okay, so let's do it. Here, 2 steps are given. One is in rectangle form and second one is in triangle form. Okay, data is given as A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. That is 5 divided by 2 centimeter. Next one is given as 2 and 3 by 4 centimeter. Next one 3 and 3 by 5 centimeter. Next width of rectangle, that is 7 divided by 6 centimeter. So 7 divided by 6 centimeter is the width of the rectangle. Now in question number we have to find perimeter of both, that is triangle and rectangle. And next one, whose perimeter is bigger? We have to compare whose perimeter is bigger. So let's start. यहाँ पे हमको ट्रायंगल का एंड रेक्टेंगल का दोनों का पेरीमीटर फाइंड करना है एंड बाद में हमको कंपेयर करना है कि किसका पेरीमीटर बड़ा है, किससे ज्यादा आता है. सो वी विल सी आफ्टर इट. सो लेट्स स्टार्ट. Question number 5. Answer. We have to find perimeter of triangle and rectangle. So let's start. First, perimeter of triangle. Perimeter of, we can write like this: triangle sine. What is triangle sine? And what is the triangle? That is AB and E. So triangle ABE. उनका perimeter क्या होता है? तीनों साइड का एडिशन. सो फर्स्ट साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड. सो दैट इज वी हैव टू एड लेंथ ऑफ AB प्लस BE प्लस AE. AB प्लस BE प्लस AE तीनों का एडिशन कर देंगे तो हमको पेरीमीटर मिल जाएगा. सो व्हाट इज द AB? सो दैट इज 5/2 प्लस 2 and 3/4 and last one is 3 and 3/5. फ्रेंड्स, रूल नंबर 1, किसी का एडिशन करना है तो पहले मिक्स्ड सेक्शन अगर दिया गया हो तो उनको हमको इम्प्रॉपर सेक्शन में कन्वर्ट करना है. इम्प्रॉपर सेक्शन में कन्वर्ट हो जाने के बाद लाइट सेक्शन में कन्वर्ट करना है. देन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट. ओके, सो पहले मिक्स्ड सेक्शन जो दिख रहा है उनको इम्प्रॉपर सेक्शन में कन्वर्ट करना है. मिक्स्ड सेक्शन कौन सा है? ये एंड ये. तो उन दोनों को पहले हम इम्प्रॉपर सेक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. So 5/2 as it is 4 to the 8. 8 plus 3, that is 11 divided by 4 plus 5 to the 15. 15 plus 3, that is 18. 18 divided by 5. ये सभी improper fraction में कन्वर्ट हो गए हैं. Now what we have to do? We have to do convert it into like fraction. Like fraction मतलब सभी का डिनोमिनेटर क्या करना है? सेम करना है. So for that what we have to do? We have to find LCM. Okay, so LCM find कैसे करेंगे? So LCM सभी डिनोमिनेटर का यूज करके फाइंड करेंगे. So 2, 4 and 5. So first we have to start divided from 2. So 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 5 is it. Now again we have to divide by 2. 2 1s are 2 and 5 is it. Now what we have to put here? We have to put 5. So 1, 1 and 1. So 2 to the 4 and 4 times the 20. So LCM is 20. So we have to convert all 3 denominators into 20 because LCM is 20. Okay. So 5 into 2. What we have to do? We have to convert its denominator into 20. LCM जो मिला है हमको उसमें कन्वर्ट करना है.
So 2 into 10 this is 20 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा 10 से प्लस 11 by 4 इनको हम 20 ले रहे हैं तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है 4 5 या 20 तो यहाँ से भी यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में भी एंड यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय 5 तो यहाँ पे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा इट इज 4 so we have to also multiply in numeral with 4 okay so 5 times the 50 2 times the 20 plus 11 5 the 55 and 4 5 the 20 plus 18 4 the 72 and 5 4 the 20 okay so we can say that here we converted in fractions into we are converting fractions into like fractions okay so like fractions में कन्वर्ट हो गए हैं अभी सारे fractions so we can add directly okay so what will be the answer here denominator is 20 and numerator that is 50 plus 55 plus 72 so you can find the answer okay now second one is we have to find perimeter of this rectangle okay so what will be the perimeter formula of rectangle so perimeter of rectangle हमने आगे के एग्जांपल में फॉर्मूला लिखा था क्या फॉर्मूला था 2 into bracket length plus width so 2 into bracket length plus width और breadth आप दोनों लिख सकते हैं ठीक है so 2 length triangle में क्या rectangle में क्या है तो length is 2 and 3 by 4 so 2 and 3 by 4 and plus width क्या दी गई है width 7 by 6 centimeter it is 7 by 6 centimeter फ्रेंड्स हम यहाँ पे ब्रैकेट में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और एक है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है so first we have to convert mixed fraction into improper fraction so that is 2 4 to the 8 and 8 plus 3 that is 11 so 11 divided by 4 and plus 7 by 6 as it is now friends here only two improper fractions are there so we can solve this example by direct cross product method यहाँ पे हम दो ही नंबर है तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं so let's see so here फ्रेंड्स वो जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है so यहाँ पे वो दो पार्ट हैं 2 11 by 4 and plus 7 by 6 so यहाँ पे सॉल्व करते हैं 2 11 6 क्या होता है 66 and 4 7 जा 28 divided by 6 4 जा 24 now इनका एडिशन करके इनका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में तो ये कैंसिल हो सकते हैं तो हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं तो 12 2 जा 24 तो 2 कैंसिल सो रिमेनिंग इज 66 plus 28 इनका एडिशन करके यहाँ पे आंसर लिखना ठीक है तो ये आंसर आएगा वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आएगा एंड ये यहाँ पे जो आंसर आएगा वो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आएगा उस दोनों नंबर को हमको कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है वो कंपेयर करने के लिए पहले हमको क्या करना होगा we have to convert both improper fractions into like fraction ये जो फ्रैक्शन नंबर आएंगे उनको like fraction में कन्वर्ट करना होगा मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना होगा बाद में हम कह सकते हैं कि कौन सा नंबर कौन सा आंसर बड़ा है कौन सा आंसर छोटा है किसका पेरीमीटर बड़ा है किसका पेरीमीटर छोटा है और मैं आंसर बता देता हूँ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज बिगर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये पेरीमीटर ट्रायंगल का बड़ा रहेगा रेक्टेंगल के पेरीमीटर से ठीक है so you have to verify by solving this
Okay. Now let's move further. Let's move to question number 6. In question number 6, please read the data of question number 6. What is given in it? In question number 6, data is given that, in question number 6, data is given that Salim wants to put a picture in a frame. The picture is 7 and 3 by 5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 and 3 by 10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? यहाँ पे एक जो पिक्चर दिया गया हुआ है, उनकी जो विड्थ है, वो कितनी है? 7 and 3 by 5 सेंटीमीटर. 7 and 3 by 5 सेंटीमीटर ये पिक्चर है. एंड उनके पास एक फ्रेम है. वो फ्रेम फोटो से विड्थ में छोटी है. तो उनकी विड्थ क्या दी हुई है? 7 and 3 by 10. 7 and 3 by 10 ये फ्रेम है. ये फ्रेम में हमको पिक्चर फिट करना है, फोटो फिट करना है. तो ये फोटो बड़ा है, इसी फ्रेम से फोटो बड़ा है. तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू कट पिक्चर. हमको पिक्चर को कट करना पड़ेगा ये फ्रेम में फिट करने के लिए. तो कितना कट करना पड़ेगा? तो ये जो पिक्चर है उसमें हम फ्रेम की साइज सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो बाकी का जितना पिक्चर बचेगा उनको हमको ट्रिम करना होगा. ओके. सो हियर वी कैन राइट इन क्वेश्चन नंबर 6, width of picture is given as 7 and 3 by 5 centimeter. Sorry, 3 by 5 centimeters is given as, and width of picture it is given as 7 and 3 by 10 centimeters. Okay. Now how much we have to trim photo? Okay. So therefore the picture should be trimmed. Therefore the picture should be trimmed. हमको क्या करना है? तो कि पिक्चर में से फ्रेम की साइज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उतना हमको फोटो ट्रिम करना होगा. So 7 and 3 by 5 minus 7 and 3 by 10. We have to subtract this number from this number. तो पहले नेक्स्ट फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करना होगा? We have to convert it into improper fraction. So let's convert it in 7 5 is 35 and 35 plus 3 that is 38 divided by 5 minus 7 10 is 70 and plus 3 that is 73. 73 divided by 10. Improper fraction में कन्वर्ट करने के बाद we have to convert it into लाइक फ्रैक्शन. हमको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट डायरेक्टली नहीं दे सकते, लेकिन इनका एलसीएम क्या आएगा? अगर हम 5 and 10 का एलसीएम लेते हैं, 5 and 10 का एलसीएम लेते हैं तो 2 5 is 5 to the 10, 5 1 the 5. तो एलसीएम क्या आएगा? 10. तो 10 एलसीएम लेने के लिए हमको दोनों को डिनोट को 10 में कन्वर्ट करना होगा. तो 38 डिवाइडेड बाय 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है. माइनस 73 डिवाइडेड बाय 10. ओके. सो अभी दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी मोर फर्दर. 38 into 2, so that is 76 and divided by 10 minus 73 divided by 10. Now both are in like fraction, so we can directly subtract डिनोमिनेटर एडिशन लिख देना है, न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो भी होता है वो लिखना है. 76 minus 73, so we have 3 that is
3 डिवाइडेड बाय 10 इनको कितना सेंटीमीटर आगे जाएगा सेंटीमीटर. So 3 by 10 centimeter we have to print this picture. Okay? So this picture को 3 divided by 10 centimeter प्रिंट करना होगा एक फ्रेम में फिट करने के लिए. Okay? So this is the answer. Now let's move further. Question number 7. Please read the data of question number 7. In question number 7, data is given that in question number 7, data is given that Ritu ate 3 by 5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Sonu. How much part of the apple did Sonu eat? Who had the largest share and by how much? इसमें डिटरमाइन किया गया है कि एक एप्पल है उसमें से रितु ने 3 by 5 पार्ट का एप्पल खाया तो उसके भाई के लिए कितना बचेगा. सोनू ने कितना खाया होगा एप्पल जो रिमेनिंग एप्पल है वो कितना खाया होगा. ठीक है. उस दोनों में से किसने ज्यादा खाया है एप्पल वो भी हमको फाइंड करना है और कितना ज्यादा खाया है वो भी हमको फाइंड करना है. ठीक है. सो यहाँ पे एप्पल दिया गया है. एप्पल में से रितु ने है 3 by 5 पार्ट. ठीक है. और सोनू ने बाकी का जो बचा हुआ है वो एप्पल खाया हुआ है. तो फर्स्ट द पार्ट ऑफ एन एप्पल इटन बाय रितु. तो पार्ट ऑफ एन एप्पल इटन बाय रितु. रितु ने कितना खाया हुआ है 3 by 5 पार्ट. पूरी एप्पल का 3 by 5 पार्ट उसने खाया. सोनू ने कितना खाया होगा. सो द पार्ट ऑफ एन एप्पल इक्वल बाय सोनू. एप्पल हमारे पास टोटल कितने हैं क्योंकि एक पूरा एप्पल है तो एक एप्पल में से रितु ने कितना खाया हुआ है क्योंकि रितु ने खाया था 3 by 5 तो पूरे एप्पल में से 3 by 5 जितना रितु ने खाया है उतना हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी का जो बचा हुआ एप्पल है वो सोनू ने खाया है. तो सोनू ने कितना खाया है वो कैसे फाइंड करेंगे. तो पूरे एप्पल में से जितना रितु ने खाया है एप्पल वो उनको हम निकाल देंगे टू सब्ट्रैक्ट. यहाँ 1 कहाँ से आया. सो 1 में पूरा एक एप्पल है. ठीक है. एक एप्पल में से 3 by 5 पार्ट रितु ने खा लिया है. सो पूरे एप्पल में से जितना रितु ने खाया है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी का जो बचा है वो खाया है वो सोनू ने खाया है. सो वी कैन फाइंड 1 minus 3 by 5. यहाँ पे 1 होल नंबर है. होल नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया गया है हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं. ठीक है. माइनस 3 by 5. यहाँ पे दो नंबर है तो हम डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं. तो 1 5 जा 5 माइनस 3 1 जा 3 and 1 5 जा 5. so 5 minus 3 is 2 divided by 5. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोनू ने कितना खाया हुआ है 2 by 5. रितु ने कितना खाया था 3 by 5 एंड यहाँ पे 2 by 5. सेकंड क्वेश्चन हु हैड लार्जर शेयर. तो लार्जर शेयर किसने ज्यादा खाया है. तो दोनों का डिनोमिनेटर देख सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. लार्ज फ्रैक्शन है तो डायरेक्टली हम न्यूमरेटर देख के पता कर सकते हैं कि किसने ज्यादा खाया है. तो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है तो 3 by 5 is greater than 2 by 5. So we can say that larger cell will be apple eaten by second question was who had the larger cell. So Ritu has उससे पहले लिखना पड़ेगा कि comparing
कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा? सो 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो उनका न्यूमरेटर हमको कंपेयर करना है। तो 3 इज ग्रेटर देन 2, so 3/5 is greater than 2/5, so we can say that Ritu had larger cell than Sonu। ओके, सोनू से ज्यादा रितु ने एप्पल खाया है। एंड लास्ट वन, बाय हाउ मच, कितना વધારે, कितना एप्पल ज्यादा खाया है, ठीक है? So we can find by subtract smaller part from bigger part। So bigger part कौन सा है? So 3/5 part, 3/5 part में से smaller part कौन सा है? 2/5। वो subtract करेंगे तो we can say that 3/5 minus 2/5, that is यहाँ पे दोनों लाइक सेक्शन में ऑलरेडी कन्वर्ट है। So 5 is 3 minus 2, that is 1/5। So 1/5 part, so Ritu's part is 1/5 more than Somu's part। So we can write here Ritu's part 1/5 more than Somu's part। ओके, इतना ज्यादा रितु ने सोमू से खाया है, ठीक है? So 1/5 part is more than eaten by Ritu। Let's move further. Question number last one, that is 8। Please read the data for question number 8। Okay, in question number 8, data is given that nature chemistry survey of 6 cells in 7/12 hours. Vaibhav chemistry survey for 10 pictures in 3/4 hours. Who was longer and why both sections was longer? Okay, so data को दिया गया है कि nature में एक picture 7/12 hours में कंप्लीट किया है and Vaibhav ने 10 pictures 3/4 hours में कंप्लीट किया है। So who was the longer? कितनी ज्यादा टाइम लगाया है? By what person was longer? कितना ज्यादा टाइम लगाया है? तो पहले तो हमको लिखना होगा कि टाइम taken by nature to color the picture। Question number 8।